الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال الله سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل احترام واجب الاحترام دوست بزرگ عزیزو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو انسانیت میں شمار کر کے یعنی انسان بنا کر کے شعور سے نوازا ہے۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے دیا ہوا ایک عطیہ اور نعمت ہے۔ آج اس جمعے کے موضوع کے اندر ایک تو دین کی نصرت کا پہلو سمجھانا ہے اور دوسرا اوقاف کی حفاظت کی ذمہ داریاں آپ حضرات کے درمیان بیان کرنا ہے۔ میں نے آیت تلاوت کلام اللہ کی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، جس کا محاوری ترجمہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، جبکہ آیت کے ترجمے میں معاوی ترجمے دین کا لفظ لیا گیا۔ اگر آپ تلاش کریں آیت میں تو یہاں دین نہیں ہے، ان تنصروا دین نہیں ہے، یہاں ان تنصروا اللہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو، وَيَنْصُرُكُمْ، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن محاوری ترجمہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اس آیت کو تھوڑا سا اس لحاظ سے سمجھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت والجلال وہ تو ناصر ہیں، مدد کرنے والے ہیں، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو نصیر ہے نا،
اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے. اللہ پیدا کرنے والے ہیں. اللہ رازق ہیں، کھلانے والے ہیں، کھانے والے نہیں. اللہ محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کو حفاظت کی ضرورت نہیں. یہاں پر اللہ رب العزت نے یوں بیان کیا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان تنصروا اللہ وینصرکم. یہاں دین کا لفظ نہیں ہے، ان تنصروا الدین نہیں ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو، وینصرکم، کہ وہ تمہاری مدد کرے. تو اللہ رب العزت تو ناصر ہیں، اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اس آیت کو یوں سمجھیں، وَيَنْصُرُكُمْ، تاکہ تمہاری مدد ہو. انسان اپنی مدد چاہتا ہے، اسی لیے اللہ کے دین کی مدد کرے. میری کم علمی کے مطابق اس کو یوں سمجھیں کہ گویا بچے کو لالچ دی جا رہی ہے. آپ بچے کو لالچ دیتے ہیں کہ تم فرسٹ کلاس کے اندر پاس ہو جاؤ، میں تمہیں سائیکل دلا دوں گا. آپ سیکنڈ کلاس کے اندر 92% لے آؤ، میں تمہیں سائیکل دلا دوں گا. یوں لالچ دی جاتی ہے. وَيَنْصُرُكُمْ کے تحت ہم اپنی مدد چاہتے ہیں. انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری مدد کرے. تو یہاں پر اللہ رب العزت یہ لالچ دے رہے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری مدد ہو، تو ان تنصروا اللہ، تم اللہ کی مدد کرو. جبکہ اللہ رب العزت مدد سے پاک ہیں. آپ اپنے بچے کو لالچ دے رہے ہیں کہ تم سیکنڈ کلاس پاس ہو جاؤ تو تمہیں سائیکل دلائی جائے گی، جبکہ آپ کو خود کو سائیکل کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں کم علمی میں عوامی لہجے میں بات سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو خود کو سائیکل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ سامنے والے کو کیا لالچ دے رہے ہیں کہ تمہیں سائیکل دلا دوں گا. تو یہاں اللہ رب العزت ان تنصروا اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی مدد کرو، اور آگے یہ قید لگائی وَيَنْصُرُكُمْ، تاکہ تمہاری مدد ہو. تو انسان اپنی مدد چاہتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ لالچ دیا ہے کہ تم چاہتے ہو مدد ہو تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ ان تنصروا اللہ، تمہیں اللہ کی مدد کرنی ہوگی. جبکہ اللہ رب العزت خود مدد سے پاک ہیں، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں. محاوری ترجمہ یہ لیا گیا ان تنصروا الدین، کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو. جبکہ دین کا لفظ آیت میں نہیں ہے. لفظ آیت یہ ہے ان تنصروا اللہ، تم اللہ کی مدد کرو. تو گویا اللہ کے دین کی مدد اللہ کی مدد ہو سکتی ہے، اور ہم اللہ کی مدد نہیں کر رہے، اللہ کے دین کی مدد نہیں کر رہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مدد ہو، اس لیے ہم اللہ کی مدد کریں. اسی لیے ہم اشاعت دین کر رہے ہیں، اسی لیے ہم تبلیغ دین کر رہے ہیں، اسی لیے ہم اشاعت دین کے جو شکلیں ہو سکتی ہیں ان شکلوں کو اختیار کر رہے ہیں. اسی لیے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اسی لیے ہمدردی کر رہے ہیں، اسی لیے محبت کر رہے ہیں، اسی لیے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ تعاون اور معاون بن رہے ہیں، اسی لیے اس کی فردیت کو، اس تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں. جو دین کی شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں، ہم ان کی مدد کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی مدد کر رہے ہیں. ہم نے کسی مدرسے کو تعاون کر دیا تو ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے دین کی مدد کی ہے، مدرسے کی مدد کی ہے. ہم نے کسی بچی کی شادی میں کوئی مدد کر دی، کسی کا قرض اتارنے میں کوئی مدد کر دی، تو ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ یہ قائم کیا کہ ہم نے دین کی مدد کی ہے. البتہ ہم نے دین کی مدد نہیں کی، اللہ نے توفیق دی، ہم نے اس کی مدد کی، اور ہم اس مدد کے بدلے میں اپنی مدد چاہتے ہیں، اس لیے مدد کی. ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم چاہتے ہو اپنی مدد، اس لیے تم نے اللہ کے دین کی مدد کی ہے. تم نے یہ سوچ کر مدد کی ہے کہ میں 10 روپے دوں گا،
اللہ रब्बुल इज्जत मेरे माल को बढ़ा देंगे। मैं इसके साथ कोई हमदर्दी कर दूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे चैन दे देंगे, मुझे सुकून दे देंगे, मुझे इज्जत दे देंगे, मुझे राहत दे देंगे, मुझे आसाइश और आराम वाली सहूलतें दे देंगे, मुझे असबाब मुहैया कर देंगे। तो गोया हमने अल्लाह की मदद नहीं की है। इन तंसुरुद्दीन, हम दीन की मदद नहीं करते हैं, हम अपनी मदद चाहते हैं। अपनी मदद वाया होकर गुजरती है दीन की मदद से। कि जितना तुम दीन के मामले में रग़बत दिखाते हो, जितना दीन से कुर्बत करके दीन के ताउन करने वाले और मुआविन बनते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद उतनी ही तवज्जो के साथ आपकी तरफ मग़लूब हो जाती है। तो गोया हम अपनी मदद चाहते हैं, इसलिए दीन की मदद करते हैं। हम दीन की मदद नहीं कर सकते। दीन अल्लाह का है। इन तंसुरुल्लाह, अल्लाह मदद से पाक है, अल्लाह ताला को मदद की जरूरत नहीं। ये तो हम अपनी मदद चाह रहे हैं, इसलिए शक्लें इख्तियार कर रहे हैं कि मदारिस को ताउन किया जाए, मराकिज को ताउन किया जाए, तबलीगी जमात को ताउन किया जाए, शक्लें और सूरतें इख्तियार की जाए, तंजीमों और तहरीकों को ताउन किया जाए और जमातों को ताउन किया जाए। अब ये ताउन सिर्फ माल वाला ताउन मत ले लेना। आदमी जाता है सिर्फ ताउन के मामले में माल। हमारा माइंडसेट ये है कि हम ताउन के मामले में जहां ताउन का लफ्ज आता है, ये समझते हैं कि माल खर्च करना, जबकि ताउन माल से नहीं किया जाता। सिर्फ ताउन तो तसल्ली से भी किया जा सकता है, ताउन तो हमदर्दी से भी किया जा सकता है, ताउन तो सिफारिश से भी किया जा सकता है, ताउन तो साथ चलकर के भी किया जा सकता है, ताउन तो दुआ से भी किया जा सकता है। ताउन की शक्लें सूरतें अलग अलग हो सकती हैं। मैंने और आपने अपने दिमाग में ये फतूर तारी कर लिया कि ताउन का नाम सिर्फ माल खर्च करना है, जबकि बहुत सी जगह पर माल फेल हो जाता है, सिफारिश काम करती है। अब वहां पर ताउन माल वाले का नहीं चलेगा, वहां पर ताउन सिफारिशी का चलेगा कि इसकी सिफारिश से वहां काम हो सकता है। समझ में आ गई बात? तो ताउन सिर्फ माल से नहीं होता है, ताउन सिर्फ आपकी तसल्ली देने से भी हो सकता है। आपने किसी को तसल्ली दे दी है, हमदर्दी वाली बात कर दी है, उसका दिल जीतने वाली बात कर दी है, तो आपने ताउन कर दिया। आप किसी जमात और तहरीक के फर्द नहीं हैं, लेकिन सिर्फ आपने उनकी अपील को, उनकी अपील की आवाज पर लब्बैक कह दिया है, तो आपने ताउन कर दिया। मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाऊंगा करंट इशू पर जो चल रहा है, औकाफ का मसला। जबकि ये आयत औकाफ के बयान करने पर उतरती नहीं, हम दूसरी आयत, लेकिन कुरान हर मौजू पर उतारा जा सकता है। औकाफ की आयत ढूंढकर औकाफ की आयत पर फिर औकाफ के मसले पर बोला जा सकता था, लेकिन मेरा मिजाज उर्फी बात और अवामी बात करने का है। तो अब आप ये समझें कि आप ताउन कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपका माइंड ये बनाया कि ताउन सिर्फ माल से नहीं होता। ताउन आप किसी जमात की, किसी तहरीक की, सिर्फ उनकी अपील पर लब्बैक कह दिया आपने, तो आपने उस जमात का ताउन कर दिया कि नहीं कर दिया भाई? मिसाल देके समझाऊं। पिछले हफ्ते जुमे का दिन था, रमजान का आखिरी जुमा था, जिसको मैंने और आपने जुमातुल विदा का नाम दिया था। अवाम ने जुमातुल विदा का नाम दिया, अलविदा का नाम दिया। सोशल मीडिया मुझसे ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं। एक अपील ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की गई, और वो अपील मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। वो अपील ये थी कि अपने राइट हैंड पर ब्लैक पट्टी, सियाह पट्टी आपको बांधनी है, और वो इसलिए बांधनी है कि ताकि हुकूमत को ये मैसेज चला जाए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने दफ्तर में बैठकर अगर एक वीडियो शाये कर दे, और वीडियो शाये करने से मुसलमानों को मुल्क भर के अंदर यकजहती का पैगाम दे सकती है, अपनी मेजॉरिटी का पैगाम दे सकती है। लेकिन जब वो वीडियो हम तक पहुंची तो हमने ताउन यानी लब्बैक वाला ताउन ना करके सवालिया वाला पेश कर दिया कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। इन तंसुरुल्लाह के तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, तो अल्लाह को मदद की जरूरत है नहीं है ना?
یہ دینی شعبے جو قائم ہیں انہی مدد کے اندر کی جائے گی تاکہ اللہ ہماری مدد کرے. اگر ہم اوقاف کی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی مدد کریں گے تو اوقاف کے مسئلے میں مسلمانوں کی مدد ہوگی نا, کیونکہ ہم دارالاسباب میں ہیں, ہمیں اسباب اختیار کرنا ہوگا. اگر ہم اس ملک کے اندر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی مدد اور تعاون کریں گے تو ہماری اوقاف کی تعاون ہوگا, ہماری عیدگاہوں کا حفاظت ہوگی, ہمارے یتیم خانوں کی حفاظت ہوگی, ہماری اوقاف کی سرزمین کی حفاظت ہوگی, اس ملا بابا ٹیکری مسجد کی حفاظت ہوگی, اس درگاہ کی حفاظت ہوگی, سرزمین کی حفاظت ہوگی. ہم تعاون نہیں کرتے, ہم لبیک نہیں کہتے تو اللہ رب العزت تو صاف کہہ رہے ہیں نا, ان تنصر الدین ان تنصر اللہ, کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو. ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ کی مدد کرنے کہیں میدان میں جانا پڑے گا. بھائی جس شعبے کے اندر آپ مدد اختیار کریں گے, آپ تعاون کریں گے, اس شعبے کے اندر آپ کی مدد کی جائے گی. آپ نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کر رہے ہیں تو آپ کی نماز بہترین بنے گی. آپ زکوٰۃ کے اندر اللہ رب العزت کے خوف سے ڈر کر مکمل زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو آپ کے مال میں برکت ہوگی, آپ کے مال کی حفاظت ہوگی. آپ اگر کسی تبلیغ کے کام کے اندر اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں, لگا رہے ہیں, تو اس سے لوگ تبلیغ کی طرف مائل ہوں گے, ان کے اندر دینی شعور پیدا ہوگا, وہ کلمہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے کہنے والے بنیں گے. آپ کسی مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں تو اس سے علماء پیدا ہوں گے اور وہ قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کریں گے. تو تعاون تو الگ الگ شکلوں میں ہو گیا نا. تو آپ اگر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا تعاون کریں گے تو پھر اس ملک کے اندر اوقاف سرزمین کی محافظت اور حفاظت ہوگی. آپ یہ سمجھیں گے کہ اس کالی پٹی باندھنے سے کیا ہوگا, تو گویا یہ سوال پیدا ہوتے رہیں گے. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اپنی جو مخالفت کر رہا ہے اس بل کی اور مقابلہ کر رہا ہے اور جو صورتیں اور شکلیں اختیار کر رہا ہے وہ دفتر میں بیٹھ کر اور پارلیمنٹ کے اندر ہوتی رہیں گی جب تک آپ لوگ اپنے اندر شعور پیدا نہیں کریں گے. اس ملک کے اندر اوقاف کی حفاظت نہیں ہو سکتی. آپ یہ مائنڈ سیٹ آپ یہ نکال دیں, اپنے دماغ سے یہ فطور نکال دیں کہ اس ملک کی اوقاف کی حفاظت کی ذمہ داری صرف اور صرف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ہے. یہ مائنڈ سیٹ قائم کرنا غلط ہے. اس ملک کے اندر اوقاف کی سرزمین کی حفاظت کی ذمہ داری اس ملک کے اندر ہر نام لیوا مسلمان, ہر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے, نہ یہ کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ذمہ داری. کل ایک صاحب نے اسٹیٹس لگایا, میرے بہت قریبی ہیں, میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں, انہوں نے اسٹیٹس لگایا کہ دیکھ لیا کالی پٹی باندھنے کا نتیجہ. یہ جو مائنڈ سیٹ چل رہا ہے نا نئی جنریشن کا, جمہوریت سے کیا ہوگا, ان چیزوں سے کیا ہوگا, ان چیزوں کو اختیار کرنے سے کیا ہوگا, اب وقت ہے متحد ہونے کا, اب وقت ہے اعلان جنگ کرنے کا, اب وقت ہے گویا اپنی میجورٹی آف پاور دکھانے کا. آپ اس وقت اس ملک کے اندر ڈیفنس کی حالت میں ہیں, آپ اس وقت اس ملک کے اندر مکی دور میں ہیں, اور آپ باتیں کریں جہاد کی اور آپ بات کریں اعلان جنگ کی. یہ کس سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ تو ایک صاحب نے اسٹیٹس لگایا تھا کل, ان کا ذہن یہی کہ بوڑھی قیادت سے کیا ہو رہا. انہوں نے تانا اور طنز کے طور پر اسٹیٹس لگایا کہ دیکھ لیا کالی پٹی باندھنے کا نتیجہ, کیونکہ وقت بل تو پاس ہو گیا نا. تو یہ نشانہ تھا ان کا کہ کالی پٹی باندھنے کا نتیجہ دیکھ لیا آپ نے. تو میں نے ریپلائی کیا کہ دیکھ لیا کالی پٹی نہ باندھنے کا نتیجہ. اب بتائیں اس بات میں کوئی غلط بات ہے؟ آپ کی سوچ کے مطابق یہ ہے کہ دیکھ لیا کالی پٹی باندھنے کا نتیجہ, میری سوچ کے مطابق یہ ہے کہ دیکھ لیا کالی پٹی نہ باندھنے کا نتیجہ. تو کوئی غلط بات ہو گئی؟ بھائی اگر کالی پٹی مسلمان اس ملک کے اندر تقریباً 20-22 کروڑ کہے جاتے ہیں,
अगर पिछले हफ्ते 20-22 करोड़ मुसलमान काली सिया पट्टी बांध कर निकलते और पुरअमन एहतजाज करते, पीस, जस्टिस ऑफ पीस करते, तो गोया इस मैसेज चला जाता कि मुसलमानों की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक आवाज पर मुसलमान चप्पे चप्पे से, गली गली से, कूचे कूचे से सिर्फ काली पट्टी की अपील पर निकल सकता है। तो अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये ऐलान कर दे कि अब धरने की बारी जंतर मंतर में है, अब धरने की बारी पांगल मैदान में है, अब धरने की बारी होडगी ईदगाह के अंदर है, अब धरने की बारी, तो फिर मैसेज हुकूमत को यह पहुंचता कि सिर्फ एक वीडियो बनाने की शक्ल में मुसलमान यकजहती कर सकता है, इत्तेहाद कर सकता है। तो गोया अगर इन्होंने यह ऐलान कर दिया कि अब शाहीन बाग को दोबारा कायम किया जाए, तो वो खौफजदा होते कि नहीं होते साहब? आप और मैं यही सवाल लेकर बैठे हुए हैं कि इन काली पट्टी बांधनों से क्या होगा। आपके और मेरे बड़ों की बातें समझ में नहीं आ रही। आपके और मेरे दिमाग के अंदर सिर्फ शैतानी फुतूर और जमाने के लिहाज से, जनरेशन के हिसाब से, जो आजकल ज्योग्राफिया और आज की जनरेशन के हिसाब से माइंड सेट किए जा रहे हैं, सिलेबस के हिसाब से माइंड सेट किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर छोटे छोटे मैसेज के हिसाब से माइंड सेट किए जा रहे हैं, आपकी और मेरे कल्चर के हिसाब से वो माइंड सेट मैं और आप लेकर बैठे हुए हैं। आपने और मैंने ये सोचना बंद कर दिया है कि अगर हम अकाबरीन के तरीकों पर, अपने बड़ों के तरीकों पर फॉलो करेंगे तो क्या कुछ हो सकता है इस मुल्क के अंदर। मैं आपसे पूछता हूं, अगर हो सकता था, नहीं हो सकता था? मेरे मुकाबिल के अंदर अगर 4 लोग एक वीडियो बना करके और सोशल मीडिया पर आ जाएं तो मैं खौफ खाऊंगा नहीं खाऊंगा कि भाई इसके पीछे इतनी बड़ी मेजॉरिटी है। तो हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सिर्फ सियाह पट्टी की आवाज पर अगर लब्बैक से ताउन कर दिया होता तो शायद ये मैसेज हुकूमत तक पहुंच सकता था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी चीज के लिए नहीं निकला, सड़कों पर नहीं आया, सिर्फ एक कमरे में, बंद कमरे में और 4 दीवारी में वीडियो बना करके मुसलमान को इत्तेहाद दे सकता है। ये मैसेज पहुंच जाता हुकूमत, लेकिन मेरी और आपकी कोताही की वजह से, मेरी और आपकी गफलत की वजह से हम ये मैसेज पहुंचाने में कासिर रहे। हम ये मैसेज पहुंचाने में हुकूमत से गफलत और कोताही की वजह से पीछे रह गए। होना यह चाहिए था जब मसला शरीयत का आए, जब मसला नामूस रिसालत का आए, जब मसला नामूस कानून शरीयत का आ जाए, जब मसला नामूस कुरान का आ जाए, हुर्मत कुरान का आ जाए, तो फिर किस चीज की मसलकियत का इख्तिलाफ, किस चीज का बिरादरी का इख्तिलाफ, किस चीज का सूबाइयत का इख्तिलाफ, किस चीज का रंगो रूप का इख्तिलाफ, किस चीज का हुकूमत का इख्तिलाफ, किस चीज का शहरों का इख्तिलाफ, किस चीज का बिरादरी और मसलकियत का इख्तिलाफ कौम का। इसको बालाए ताक रखने की जरूरत है इस वक्त, जिस वमुल हालात में हम और आप इस वक्त मुल्क के अंदर जी रहे हैं। इस मुल्क के अंदर चाहिए हमें और आपको कि हम अपने मसलकियत के इख्तिलाफात से पाक हों, हम अपनी बिरादरियों के इख्तिलाफात से पाक हों, हम अपने रंग रूप के इख्तिलाफात से पाक हों, हम अपने सरनेम और शेख और शयूख और बिरादरियों के नाम से, इन इख्तिलाफात के नाम पर पाक होने की जरूरत है। हमें जरूरत है इत्तेहाद की, हमें जरूरत है जमा होने की, हमें जरूरत है इज्तिमाइयत की, हमें जरूरत है अल्लाह रब्बुल इज्जत के खातिर एक अलंबरदार, एक झंडे के नीचे जमा हो जाने की, ताकि ये हो जाए कि मुसलमानों की मेजॉरिटी का सबूत इस मुल्क की हुकूमत को दिखाई दे जाने लगे। इस मुल्क के अंदर आपको और मेरे ऊपर 75 साल से दिमाग के अंदर और मैसेज और सिलेबस के जरिए और अल्फाज के जरिए दिमाग के अंदर ये फतूर बिठाया गया है कि आप माइनॉरिटी में हैं, आप अकलियत में हैं। मैं आपसे कहता हूं इस मुल्क के अंदर 2nd नंबर पर मेजॉरिटी मुसलमानों की पाई जाती है। दिखाइए अगर मुस्लिम इस मुल्क के अंदर सबसे अव्वल अगर मेजॉरिटी पाई जाती है तो वो हिंदुज़ में है। 2nd नंबर पर दिखाइए मुसलमानों से ज्यादा किसकी मेजॉरिटी इस मुल्क के अंदर है। सिख और ईसाई का नंबर बहुत बाद में है, दलित का नंबर बहुत बाद में है, लिंगायत का नंबर बहुत बाद में है। जितने और मजाहिब हैं इस मुल्क के अंदर अपने अपने मजहबों पर
اختیار ہے لوگوں کو فالو کرنے کا. ان کے نمبر بعد میں آتے ہیں. سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی اس ملک کے اندر جو پائی جاتی ہے وہ میری اور آپ کی, محمد رسول اللہ کے غلاموں کی, اللہ اور اللہ کی وحدانیت کے قبول کرنے والوں کی, اللہ کی توحید پر عمل کرنے والوں کی پائی جاتی ہے. میں اور آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم مائنورٹی میں ہیں, ہم کم ہیں, ہم میجورٹی کے اندر نہیں آ سکتے, ہم میجورٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ صاحب آپ مائنورٹی میں ہیں, آپ کو ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنی مائنورٹی کو اکٹھا کر کے اپنی میجورٹی کو دکھائیں. آپ بڑھ گئے مسلک کے اختلاف میں, آپ بڑھ گئے برادری کے اختلافات میں, آپ کو اپنے دل وسیع کرنے ہوں گے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے اندر اوقاف کی سرزمین کی حفاظت آپ کو خود کرنی ہوگی. اس ملک کی پارلیمنٹ آپ کے اوقاف کی ذمہ داری نہیں لیتا ہے. اس ملک کی اسمبلی آپ کے اوقاف کی ذمہ داری نہیں لیتا ہے. اس مہاراشٹر کے صوبے کی اسمبلی آپ کے اوقاف کی سرزمین کی, آپ کی عیدگاہوں اور یتیم خانوں کی, آپ کی مسجد و مراکز کی, آپ کی خانقاہوں اور درگاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیتا ہے. اس ملک کے اکابرین چیخ چیخ کر, پکار پکار کر آپ کے اوپر امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ قوم اتحاد پیدا کرے, یہ قوم ایک ہو جائے, یہ قوم اپنے دل وسیع کرے. جب اس قوم کے اوپر نام آئے گا جمعیت اہل حدیث کا, تو اس ملک کے اندر جمعیت اہل حدیث کے تعاون کرنے کے لیے ملک کا بچہ بچہ اختیار اپنے آپ پر حاصل کرے گا. جب آئے گا دیوبندیت کی حفاظت کا, تو اس ملک کا بچہ بچہ دیوبندیت کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا. جب آئے گا بریلویت کا مسئلہ, تو اس ملک کے اندر بریلویت کی حفاظت کے لیے بچہ بچہ کھڑا ہوگا. جب آئے گا کسی اور مسلک کے اختلافات کا اور اس کے اوپر جب کوششیں اور حملے ہوں گے, تو اس ملک کا بچہ بچہ اس کی حفاظت کے لیے کاوشیں اور کوششیں کرے گا. مجھے اور آپ کو, حکومت کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ ہم آپس میں تو بچ سکتے ہیں, شریعت کے نام پر نہیں بچ سکتے. ہم ناموس محمد کے نام پر نہیں بچ سکتے, ہم ناموس قرآن کے نام پر نہیں بچ سکتے, ہم حرمت اپنی شریعت کے اوپر نہیں بچ سکتے. ہم آپس میں بچ سکتے ہیں, اپنے مسائل میں بچ سکتے ہیں, اپنے مسائل میں اختلافات رکھ سکتے ہیں, لیکن جب مسئلہ شریعت کا آئے, جب مسئلہ ناموس محمد کا آئے, تو ہمیں بٹنا, یہ ہمارا کٹنے کا دور شروع ہو جائے. یہ جملے بڑے ہو سکتے ہیں, اب یہاں پر بٹنے کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. آپ مسائل میں اختلاف رکھیے, آپ کا مسئلہ یہاں ہاتھ باندھنے کا ہو یا پیٹ کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہو, اب دور ہاتھ کاٹنے کا آ رہا ہے. آپ ابھی تک اسی مسئلے پر ہیں کہ ہاتھ اوپر باندھے جائیں یا نیچے باندھے جائیں. دور ہاتھ کاٹنے کا آ رہا ہے, اور ابھی تک آپ مسئلے اختلاف میں کیا بڑے ہوئے ہیں. بابا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ دانت سینے پر باندھ دیں یا پیٹ کے نیچے باندھ دیں یا ناف پر باندھ دیں, یہ آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے, ذاتی ہو سکتا ہے. اس مسئلے کو اسلام کا مسئلہ کیوں بنا دیا؟ اس مسئلے کو حکومت میں آپ نے یہ میسج کیوں دے دیا کہ مسلمان آپس میں بٹا ہوا ہے, مسلمانوں کی پارٹی بندیاں اندر پائی جاتی ہیں, مسلمان گروہ کے اندر بٹ چکا ہے, مسلمانوں کے گروپ پائے جاتے ہیں. صاحب آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ہاتھ ناف کے نیچے باندھ دو یا ناف کے اوپر سینے پر باندھ دو, لیکن نماز تو پڑھو نا. آپ آمین زور سے کہو یا خاموشی سے کہو, لیکن نماز تو پڑھو نا. مسئلہ نماز کا اجتماعیت پر اور اسلام کا جمع ہونے پر ہے. بتائیں کس امام میں, چاروں اماموں میں سے کس نے یہ کہا ہو کہ جس نے آمین خاموشی سے کہہ دی اس کی نماز نہیں ہوتی, جس نے آمین زور سے کہہ دی اس کی نماز نہیں ہوتی؟ چاروں اماموں کے مسلک الگ ہو سکتے ہیں, ان کی رائے الگ ہو سکتی ہے, لیکن کسی مذہب میں اور کسی مسلک میں یہ نہیں ملتا کہ نماز آج سے معاف کر دی گئی ہے, آج سے شراب حلال کر دی گئی ہے. جو مسئلے جمع ہونے کے ہیں, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان مسائل پر جمع ہوں. ہمیں ضرورت ہے اس وقت جمع ہونے کی, ہمیں ضرورت ہے اس وقت اپنی میجورٹی دکھانے کی کہ ہم میجورٹی کے اندر ہیں. سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی ان انڈین
मुस्लिम की पाई जाती है, मैं और आप अपनी मेजॉरिटी नहीं दिखा सकते, तो क्या फायदा इस मुसलमान का नाम लेने का, और क्या फायदा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की नारे तकबीर बुलंद करने का और मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत बयान करने का। मैं और आप ना गुलाम मोहम्मद होके, मैं और आप तौहीद परस्त होके, मैं और आप एक खुदा के कायल होकर के जब अपनी मेजॉरिटी नहीं दिखा सकते हुकूमत को, तो क्या फायदा है साहब। हम इस मस्जिद के अंदर 200 लोग जमा हैं, ये मेजॉरिटी नहीं है। मुसलमानों के जुम्मे से बातिल घबरा जाता है। क्या आपको वो कारगुजारियां आपने नहीं सुनी कि देवबंद के अंदर जब एक मसला उठा और मसला उठने के बाद जब अकाबरीन के कानों में यह आवाज पड़ी कि कल सुबह बातिल अपनी हथियार लेकर के इन मुसलमानों की बस्तियों पर हमला करने आ रहा है, तो उन बातिल ने हमारे अकाबरीन ने हिकमत अमली अपनाई कि हर घर के अंदर टोपियां तकसीम की गई कि फजर की नमाज खुदारा आज पढ़ लो, कल पढ़ना या ना पढ़ना, लेकिन आज फजर की नमाज पढ़ो और इन टोपियां लगा करके बाजारों में निकलो। जब ये टोपियां लगा करके फजर की नमाज पढ़ के बाजार में निकले तो बातिल डर गया कि हम समझते थे शायद 200 घर मुसलमानों के हैं, यहां तो मुसलमानों की अक्सरियत पाई जाती है, हमला करने से रोड इख्तियार कर लिया गया। ये इसी मुल्क की कारगुजारी है साहब, देवबंद इसी मुल्क के अंदर ब्रिटिश इंडिया की जिम्मेदारी वो है कि जब बातिल ने कोशिश की कि हम मुसलमानों की बस्तियों पर हमला करेंगे, तो हुकूमत हमारे अकाबरीन ने हिकमत अमली ये अपनाई थी कि उस वक्त टोपियां तकसीम की गई थी कि सिर्फ फजर की नमाज के बाद टोपियों के अंदर निकल जाओ, ताकि बातिल को ये पैगाम पहुंच जाए कि मुसलमान अभी जिंदा हैं, मुसलमान इतने हैं, अक्सरियत के अंदर हैं। वो तो बेचारे यही समझ रहे थे कि जिनकी दाढ़ियां हैं, जो कुर्ता पजामा पहनते हैं, जो टोपी लगाते हैं, बस यही 50-60 मुसलमान इस मोहल्ले के अंदर रहते हैं। जब टोपियां तकसीम की गई तो बगैर दाढ़ी वाला भी टोपी लगाकर निकला, पैंट शर्ट पहनने वाला भी टोपी लगाकर निकला, तो ये मालूम हो गया बातिल को कि अक्सरियत पाई जाती है इस मुल्क के अंदर। इसीलिए मैं इस मामले में अक्सर अर्ज करता हूं, जब ये बात आ जाती है अक्सर अर्ज करता हूं कि गोया सुन्नतों के जिंदा करने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुन्नतों के अंदर रुअब रखा है कि जब टोपी की सुन्नत जिंदा की गई तो बातिल के सीनों पर खौफ तारी हो गया और वो अपने अमलों से रुक गए। आपने सुना है हजरत उसामा की जमात, कि हजरत उसामा की जमात जब मदीने की सरहद पर और बाउंड्रियों पर चक्कर लगाई तो घोड़ों की बीट से, घोड़ों की गंदगी से और पैरों के निशान से रूस और फारस कांप गए कि जब इनके बाहर इतने घोड़ों की गंदगी पड़ी हुई है तो मदीने के अंदर कितने घोड़े तैयार होंगे जंगी, और कितने लोग हमारे इंतजार में मुकाबले के लिए खड़े होंगे। सिर्फ घोड़ों की गंदगी से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दिलों को हिला दिया, झंझोड़ दिया। तो क्या काली पट्टी और सियाह पट्टी बातिल को यह मैसेज नहीं दे सकती थी? हमारे मुल्क के असेंबली और पार्लियामेंट को यह मैसेज नहीं दे सकती थी कि सिर्फ काली पट्टी के ऐलान पर ये इतने जमा हो सकते हैं? तो अगर ये चीज जब हुकूमत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हुकूमत को डराया कि अगर आपने इस मुल्क के अंदर वक्फ तरमीमी बिल को पास कर दिया तो हम शाहीन बाग के तौर पर, हम एनआरसी के तौर पर धरने करेंगे और मुल्क का चप्पा चप्पा और मुल्क का शहर शहर के अंदर धरने कायम होंगे, तो ये मैसेज चला जाता कि हो सकता है क्योंकि इनकी एक वीडियो पर ये मुसलमान काली पट्टी बांध कर निकल सकते हैं, तो जब ये खुल्लम खुल्ला चैलेंज के तौर पर ऐलान कर देंगे तो इन मुसलमानों का क्या हाल होगा? साहब आज इस मुल्क के अंदर ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है। आपके दरमियान क्योंकि वक्त तरमीमी बिल पास हो चुका है, वो राज्यसभा के अंदर भी पास किया गया, वो लोकसभा के अंदर भी पास किया गया। मैं और आप क्या कर रहे हैं? क्या मैंने और आपने वक्फ तरमीमी बिल पास होने के बाद सिवाय लोगों के स्टेटस लगाने के, सिवाय लीडरों के स्टेटस लगाने के कुछ और काम किया? क्या सिर्फ आन करके मस्जिद के अंदर अल्लाह के आगे पढ़कर ये किया कि ऐ अल्लाह मेरी गफलत की वजह से, मेरी कोताही की वजह से मैं आपके आगे अपनी झोली को फैला कर बैठा हूं, अपनी आंख से आंसू निकाल कर आपके आगे गिरा रहा हूं और ये कहता हूं कि अल्लाह ये इस मुल्क के अंदर वक्फ तरमीमी बिल जो पास हुआ है ये मेरी गफलत की वजह से हुआ है, ये मेरी कोताही की वजह से हुआ है। मैंने अपनी औकात की हिफाजत के लिए कोई काम नहीं किया, मैंने अपनी औकात की हिफाजत के लिए कोई तदबीर नहीं की, मैंने अपनी औकात की हिफाजत के लिए तदबीर करने वालों का साथ नहीं दिया, उनकी प्लानिंग का साथ नहीं दिया, सिवाय स्टेटस लगाने के क्या हो सकता था साहब?
आज भी आप देखें, सुबह से आप अपने दिल पर हाथ रख करके कह दें, सुबह से लोगों के स्टेटस लगे हुए हैं कि वक्त पास हो गया है, वक्त पास हो गया है, और दीगर मुस्लिम लीडरों के स्टेटस के, उनके फाड़ने के स्टेटस लगा दिए। इससे क्या हो गया था? वक्त तरमीम बिल पास हो गया या वापस ले लिया गया? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं इस मसले के अंदर मैं सियासी बात करने का कायल नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात ये कहता हूं कि अगर सिर्फ फाड़ने के स्टेटस लगाने से कुछ हुआ, आपने तो उस बंदे की क़यादत को बोलने की, जमा होने की बात कर रहे हैं ना, कायद बनने की बात कर रहे हैं ना, उसके दिल के अंदर वक्त की और मुसलमानों की तड़प की बात कर रहे हैं ना, तो आप तो सिर्फ उसी के झंडे के नीचे नहीं आ सकते। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि मुत्तहिद होने की जरूरत है। अब वक्त यह है कि अगर सिलसिला जारी है, मुसावरत हो रही है, हो सकता है इस मुल्क के अंदर दोबारा आवाज लगाई जाए शाहीन बाग के तर्ज पर जिहाद को, शाहीन बाग के तर्ज पर धरने को, शाहीन बाग के तर्ज पर हमारे अमली इक़दाम को दोबारा आवाज लगाई जाए, एनआरसी के तर्ज पर गली गली और पूछो पूछो के अंदर पीसफुल प्रोटेस्ट को। इट्स नॉट क्या कहना चाहिए कि शर पसंद और शर की तरफ दावत देने के, हमारा शेवा ये रहा है, मुसलमानों का शेवा ये रहा है कि इन्होंने अपने हक की लड़ाई अमन के साथ, शांति के साथ, सुकून के साथ, पीसफुल प्रोटेस्ट करके इस मुल्क की हुकूमत को ललकारा है। आज नहीं, अंग्रेजों को भी ललकारा है। आज नहीं, बल्कि इस मुल्क के अंदर जब तलाक का मसला आया तब भी ललकारा है, जब इस मुल्क के अंदर मस्जिदों की हिफाजत का मसला आया तब भी ललकारा है, जब इस मस्जिद के अंदर स्पीकर के आजान का मसला आया तब भी ललकारा है। इस मुल्क के अंदर ललकारने वाले अब भी जिंदा हैं। बस आपको और मुझे ये करना है कि हम इन पर माल खर्च ना करें साहब, हम इन पर दुआएं का साथ दें, हम इनकी बात पर लब्बैक कहें, हम इनकी बात को कबूल करें दिल से, न कि ये कि इनकी बात पर सवाल पेश करें, न कि ये कि इनकी बात पर तंज पेश करें, न कि ये इनकी बात पर कि इससे क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा। साहब मैं आपसे कहता हूं कि उठिए आप में से कोई आदमी और वो खड़ा हो जाए और वो बहुत कुछ करे। सबसे पहले अपना मुआविन मौलवी अदनान को पाएगा कि मौलवी अदनान उसके साथ खड़ा होने को तैयार है, शाना बशाना तैयार है। अगर उसके सीने की तरफ कोई वार और हमला आएगा, सबसे पहले उस बंदे की हिफाजत के लिए मौलवी अदनान अपना सीना पेश कर देगा। ये होती है कायदाना की हिफाजत, ये होती है लीडरों की कायद, ये होती है कायद को मान लेने की बात। ये कोई स्टेटस लगाने से कायद की बात नहीं बन जाती, स्टेटस पर लोगों को दिखलाने से कायद नहीं मान लिया जाता, अपनी स्टोरीज पर और इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा करके कायद नहीं मान लिया जाता कि ये कायद हो गया, ये कायद हो गया। आपने उस कायद से सलाम नहीं किया है, आपने अपनी दुआओं के अंदर नाम लेकर के उस कायद के लिए अल्लाह से उसकी हिफाजत नहीं मांगी है। आप दम भरते हैं कयादत का, आप दम भरते हैं उसकी कयादत का, गोया इससे कुछ नहीं होगा। ये बातें आपके दिलों को गरमा तो सकती हैं और बहुत से दिलों को घिरा और नाराज कर सकती हैं। वक्त हो रहा है, घड़ियों के निशान पड़ चुके हैं, इशारे हो चुके हैं, लिहाजा आपसे दरख्वास्त ये करता हूं, खुदारा जब जब हमारी मुल्क की मिल्ली तंजीमें, तहरीकें, जमातें, जमीयतें आपको पुकारें, आप अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए, मुर्दा कौम बनकर न रह जाइए। वक्त और जरूरत इस बात की है कि हम अपनी हुकूमत को अपनी मेजॉरिटी का एहसास दिलाएं। वक्त और जरूरत इस बात की है हम अपनी हुकूमत को ये याद दिला दें कि आपकी हिंदुइज्म के बाद सेकंड मेजॉरिटी, लार्जेस्ट मेजॉरिटी अगर पाई जाती है वो इस मुल्क के अंदर हमारी पाई जाती है। आपको गैरत के लिए कहता हूं कि इस मुल्क के अंदर जो थर्ड और फोर्थ पर आने वाली मेजॉरिटी है, जो माइनॉरिटी के अंदर गिनी जाती है, उस कौम के इस मुल्क के अंदर एमएलए पाए जाते हैं, एमपी पाए जाते हैं, सीएम पाए जाते हैं। मेरा और आपकी कौम जो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, आपका सीएम पाया गया? साहब आपको ये लगने लगा कि इस मिंबरों से सियासी बातें हो, इस मिंबर का हक ये है कि इस मिंबर से मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात बयान की जाएंगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जहां जहां तालीमात दी हैं, सुन्नतों का इशारा दिया है, शरीयत का इशारा दिया है, इसी मस्जिद नबवी के मिंबरों से रसूलुल्लाह ने सियासी पैगाम भी दिए हैं। बदर की प्लानिंग किस मस्जिद में बैठकर हुई? ओहद की प्लानिंग किस मस्जिद में बैठकर हुई? यहूदियों के खिलाफ प्लानिंग, खैबर की प्लानिंग किस मस्जिद में बैठकर हुई? वो मस्जिद नबवी थी। आपकी गौसिया मस्जिद मस्जिद नबवी से अफजल नहीं हो सकती है, लिहाजा इन मस्जिदों से पुकारा जाएगा,
आपके सीनों को गरमाया जाएगा, आपके जहनों को खोला जाएगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जब जब आपको तैयार करते हैं, आप अपनी तैयारी पर लब्बैक कहें, और उन तंजीमों की तरफ जब आपको पुकारा जाए तो आइंदा अन करीब वो वक्त आ सकता है कि इस मुल्क के अंदर वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ या किसी और मसले के खिलाफ जब आपको आवाज लगाई जाए तो आप अपनी उस आवाज पर लब्बैक के साथ ताउन करें। आपसे माल नहीं मांगते साहब, आपसे सिफारिश नहीं मांगते, आपसे कुछ नहीं मांगते, आपका एक जर्रा नहीं मांगते। आपसे सवाल ये कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप हमारी इन आवाजों पर, उलमा की इन आवाजों पर, जिम्मेदारों की इन आवाजों पर कम से कम लब्बैक कह करके अपनी जिंदा दिली का सबूत दें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस उम्मत के कौम के तगय्युर को देखकर, अल्लाह ने खुद कहा इन्नल्लाह ला युगय्यिरु क़ौमिन, जिस कौम को अपनी हालत बदलने का एहसास नहीं होता, अल्लाह ताला भी उस कौम की हालत नहीं बदलते। आप तंजीमों के और बड़ों के अकाबरीन के फैसलों को दूर अंदेशी के साथ देखें। वो फैसले हिकमत अमली के साथ तय किए जाते हैं, दूर अंदेशी के साथ किए जाते हैं। मुझसे और आपसे बेहतर लोग फैसला देने के लिए वहां बैठे हुए हैं। उनके फैसलों की कम से कम लाज रख करके उनके फैसलों पर अमल दरामद मुझे और आपको करना है और अपनी जिंदा दिली का सबूत देना है और अल्लाह के आगे पड़ जाना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अब हमें होश आ गया है, अब हमें अपनी हालत बदलने का होश है। जब हालत बदलने की फिक्र होगी अल्लाह ताला भी इस कौम की हालत बदल देंगे। इसलिए आप हजरात से दरखास्त है कि जब जब हमारे मुल्क की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या तंजीमें हो या तहरीकें हो, चाहे वो शोलापुर के एतराफ की हो, चाहे वो शोलापुर के लिए हो, एतराफ के लिए हो, अतनाफ के लिए हो, जिली लेवल पर हो, सूबाई लेवल पर हो, जिस लेवल पर हो, हमें और आपको अपनी मेजॉरिटी का, अपनी जिंदा दिली का, अपनी गैरतमंदी का सबूत देना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर हमारी सरजमीन की, हमारी औकाफ की, जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी मिल्कियत है, उसकी हिफाजत फरमाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं इस जुमे से कबल कि अल्लाह ताला हमारे यतीम खानों की, हमारी दरगाहों की, ईदगाहों की, खानकाहों की, मराकिज और मसाजिद की और इबादत गाहों की और जितनी दीनी सरजमीन कायम है और जितनी औकात की सरजमीन है, हम अल्लाह के हवाले करके और अल्लाह की हिफाजत में देते हैं। अल्लाह ताला हमारे बैठने को कबूल फरमाए, बात के सुनने को कबूल फरमाए, हम सबको शुऊर पैदा फरमाए अल्लाह रब्बुल इज्जत कि हमें कुछ करना है। जब जब हमारे बड़े हमारे आवाज देंगे हम इंशाअल्लाह जिंदा दिली का और अपनी गैरतमंदी का सबूत देंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह जोर से कहने साहब, आदत नहीं है ये आवाजें लगवाने की, कम से कम इस इंशाअल्लाह का आवाज लगा दें कि हम इंशाअल्लाह कहें जोर से इंशाअल्लाह कि जब जब हमें आवाज लगाई जाएगी हम खड़े होंगे इंशाअल्लाह। और खास की सरजमीन की हिफाजत हमें खुद करनी है इंशाअल्लाह। हम आगे आएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत के खातिर, अपनी शरीयत के खातिर इंशाअल्लाह।